Welcome back to the Journey of Joy with Anjali Verma. Here we have Shailja Gupta, who is very much into fitness and is also a nutritionist in Magarpatta, Pune. She is running a beautiful studio which is known as Shailja's Fitness Club, and she has been fortunate enough to train 500 plus women in her entire journey. So let's welcome Shailja Gupta. And Shailja, over to you. So Shailja, I have been fortunate enough to meet you because any which ways I actually wanted to meet you since quite a long time, and now I have got an opportunity to talk to you, and in fact I'm sure our audience also wants to listen what you are into and how you have lived this journey. So I wanted to understand from you that how did you develop interest into fitness? वो एक क्या चीज़ थी जिसने आपको मोटिवेट किया कि आप फिटनेस में घुसो या फिर आप न्यूट्रिशनिस्ट बनो? क्या वो एक चीज़ थी? Right. So, Anjali, right from my childhood, I had this interest into fitness because I was always into dancing. I was always a sports girl in my school days. I used to participate a lot in cultural activities. So, मुझे लगता है कि and also I have seen my parents taking time for this active lifestyle because both my parents were in government job. So they were quite busy, and उतना busy होने के बाद भी मैंने देखा कि उन लोग टाइम निकाल रहे हैं इतने एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए, छोटी छोटी चेंजेस कर रहे हैं फूड में, गिविंग मी सम ज्ञान ऑन न्यूट्रिशन जब मैं छोटी थी. तो आई थिंक तब से मुझे एक आई ऑलवेज हैड दैट ज़ील एंड एंथुजियाज्म फॉर फिटनेस बिकॉज व्हेन आई वाज इनटू ऑल दीज थिंग्स आई यूज्ड टू फील हैप्पी. आई यूज्ड टू फील मोटिवेटेड. तो शायद मुझे लगता तब से वो कीड़ा आया है. And also I remember my father used to give me constant persuasion on this कि ये खाना है, ये नहीं खाना है, walking जाना है, fit रहो, because my father was a deputy commissioner. Okay. So I think it all started from there. So आप ये कहना चाहते हो कि it came all from my childhood. Alright. And also from my parents. Yeah, because usually we have seen that a lot of parents have not been into all this. Exactly. जो भी 90s या अभी के किड्स हैं उन्होंने शायद वो चीज़ें देखी होंगी, बट आई एम श्योर देयर आर वेरी लेस पेरेंट्स एंड यू आर फॉर्चुनेट एनफ टू गेट सच काइंड ऑफ पेरेंट्स हु हैव बीन इनटू फिटनेस. Right. So good to know that. Can you just share a success story or maybe a transformation which you would have witnessed into your students? कोई तो एक transformation होगा जो आपने देखा होगा, किसी स्टूडेंट को आपने train किया होगा तब. Right. तो ऐसा कुछ share करें. बिल्कुल अंजलि. So ये 9 सालों में मैंने 500 plus women को train किया है. I think more than that. Okay. And there are a lot of success stories. मतलब बहुत सारे लोग transform हुए हैं. किसी का 5 kgs, किसी का 10 kgs, किसी का 15 kgs, depending upon वो कितने टाइम तक आते हैं, उनकी consistency, वो क्या खाते हैं, वो कितने डिसिप्लिन है मेरे बैचेस में. लॉट ऑफ थिंग्स इनटू कंसिडरेशन, राइट. बट आई वुड लव टू से सम प्रोमिनेंट वंस, जैसे कि इफ आई विल से अबाउट नवप्रीत सलूजा. So Navpreet Saluja is a baker and she was a new mom at that time. So she had come to me with weight management issues. So I would like to tell you this कि जो भी मेरे पास clients आते हैं उनका बेसिकली वेट मैनेजमेंट प्रॉब्लम होता है, पुअर न्यूट्रिशन, पुअर लाइफस्टाइल, इसके साथ ही वो मेरे साथ आते हैं. ऑल्सो लॉट ऑफ स्ट्रेस इश्यूज बिकॉज ऑफ द फैट थिंग. I think lifestyle has created a stress in people and that is one major reason that people get into fitness. Very true. जब डॉक्टर बोलता है कि आप फिटनेस में घुसो, बिल्कुल सही, आप एक्सरसाइज करो, बिल्कुल तब लोग आते हैं. राइट. फिटनेस वाले लोगों के पास और बहुत लोगों को जिम ट्रेनर्स के पास. वेरी ट्रू. और बहुत लोगों को पता होता है कि हाँ हमें फिट रहना है, हमें ये चीज़ नहीं खाना है, बट कुछ एक ऊपर मोटिवेशन नहीं रहता है. मतलब आजकल सब यूट्यूब में आप देख लो या कहीं से ज्ञान ले लो, लेकिन जब तक आप उससे खुद गुजरो नहीं और एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल खुद अडेप्ट नहीं करो, तब तक आई फील वो चेंजेस नहीं आते. सो जैसे मैं बोल रही थी नवप्रीत सलूजा के बारे में, शी हैड लॉस्ट 18 kgs in my batch and she was a new mom and she really showed some good discipline and dedication. पहले she didn't believe कि वो कर पाएगी, but मैंने उसको बोला. I think that happens with a lot of Indian women. They just lose confidence, especially when they become a mom. When they become a mom, they completely forget कि वो एक मतलब पहले इंसान, मतलब एक वुमेन भी है, वो भूल जाते हैं कि पहले वो वुमेन है फिर मम्मी है. Of course, तो वो चीज़ काफ़ी लोग शादी के बाद भूल जाते हैं. बिल्कुल. So Navpreet, she lost 18 kgs. She's a baker. And काफ़ी डिसिप्लिन थी, काफ़ी न्यूट्रिशन पे उसने फोकस किया. बिकॉज क्या होता है ना, सिर्फ वर्कआउट से नहीं होगा, यू ऑल्सो हैव टू फोकस ऑन न्यूट्रिशन. ऑफ कोर्स. आई थिंक 70 या 30% ऐसा कुछ
सो यू कैन से दैट रेशियो बोल सकते हैं जी। हाँ, मतलब 60 to 40% ऐसे बोल Okay. सकते हैं Alright. या 70 भी बोल सकते हैं। मेरे लिए तो Right. न्यूट्रिशन ऑब्वियसली फर्स्ट आता है, फिर बाद में Correct. वर्कआउट्स आता है, Right. बट दोनों साथ में चाहिए। ऐसे नहीं हो सकता कि आप सिर्फ खाने के साथ ही आप कर रहे हो, आप फिर आप अलग दिखोगे, बिकॉज Right. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन बोथ गोज हैंड इन I have heard lots about keto diet. राइट What do you राइट। think about it? Is it right or wrong? शायद से उसमें एक्सरसाइज इन्वॉल्व नहीं रहती है। आई ऑनेस्टली ना अंजलि डोंट बिलीव इन ऑल दीज क्विक फिक्सेस, बिकॉज ये जो भी कीटो डाइट है ऑब्वियसली ये हेल्पफुल होता है, जी। ऐसा नहीं होता है कि नहीं होता है। ये एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है। फॉर एग्जांपल Right. 3 मंथ्स 6 मंथ्स आप कोई भी एक डाइट ले लो, कीटो Right. डाइट ले लो, या फिर आजकल ये होता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का जी, बहुत जी, बहुत मुझे चला है, बहुत पूछ लोगों से रहे I हैं। have been hearing this, एग्जैक्टली, yes. हर्बल शेक्स ले लो, ये ले लो, वो ले लो। आई रियली डोंट बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स। आई हैव नेवर डन एनीथिंग लाइक दैट, और मैं Alright. कभी भी मेरे क्लाइंट को ऐसे कभी भी प्रमोट नहीं करती हूँ। बिल्कुल। काफ़ी लोग मुझे अप्रोच कर चुके हैं इस चीज़ को लेके कि कोलैबोरेट कर लेते हैं, आप हमारे शेक्स उनको दे दो, हर्बल ड्रिंक्स ऐसे कुछ दे दो, एंड बट आई डोंट बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज मैं खुद यू फील कि जो सीधा साधा रास्ता बिल्कुल है, बिल्कुल एक and- न्यूट्रिशनिस्ट के Right. लिए ऐसा है कि सही न्यूट्रिशन फॉलो करो हाँ। और सही एक्सरसाइज करो। एंड ये डाइट, मतलब मुझे जब भी फोन आते हैं तो मुझे Right. बोलते हैं कि क्या मुझे डाइट फॉलो करना पड़ेगा। मैं Right. बोलती हूँ डाइट को डाइट सामान क्यों ले रहे हो? जो आप नॉर्मल दादी माँ के ज़माने से आप जो खाते जी, आ रहे हो, जी। उनको तो नहीं पता था ये सब चीज़ें कि ये Correct. जिम एंड दिस एंड दैट, दे ऑल हैड दिस फंक्शनल ट्रेनिंग, भाग रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, जल्दी सो रहे हैं, जल्दी उठ रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं। सो फिर भी उन लोग कितने फिट रहते थे। हाँ ठीक है, वो बिल्कुल, right. जिमिंग नहीं था, वो नहीं था, बट देन फिर Correct. भी उनका एक अलग सस्टेनेबिलिटी था। बिल्कुल, right. सो मुझे तो लगता है कि आई डोंट पर्सनली बिलीव इन ऑल दिस क्विक फिक्सेस, कीटो डाइट्स एंड ऑल। गुड है, ज़रूर असर करता है, काफ़ी अच्छा है, बट मुझे लगता है कि पूरे टाइम में अगर आपको कुछ सर्वाइव करना है तो आपको एक बेसिक खाना, जो होम मेड वार्म मील्स, टाइम टू टाइम ईटिंग, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। Now when you talk about खाना नहीं खाना और ध्यान रखना, basic food, so that another question comes to my mind is कि हम इतने busy हैं अपनी life में and we have such kind of lifestyle that we are running to office, we are just catching our buses, maybe the cabs, and that's how it is, but लोगों के पास time नहीं है खाना बनाने का। Exactly. You know, Seriously. they just cannot do it, and if they ask the cook to do it, the cook is going to ask him or her कि हमें तो ये नहीं आता है। तो हाउ टू सस्टेन विथ दैट एंड हाउ कैन वी मैनेज विथ सच काइंड ऑफ लाइफस्टाइल एंड विथ अ गुड न्यूट्रिशन? कैसे पॉसिबल है? गुड क्वेश्चन। मुझे काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि अगर मैं मेरी बात करूँ, क्योंकि हम ये सब हमेशा, सॉरी बट हम ये हमेशा सुनते हैं ना कि एक बहुत फैंसी डाइट होती है, Right. केक्स बना लो, ये ऐसे ब्रोकोलीज खा लो, हाँ. फिर और भी बहुत सारी फैंसी डाइट्स हाँ. होते हैं। तो मुझे लगता है ये इतना टाइम ही नहीं है लोगों के पास टू क्रिएट दैट फॉर देम। मतलब एक नॉर्मल जो जनता रहती है उनके पास समय ही नहीं है, दे डोंट हैव सच काइंड ऑफ टाइम टू मेक सच फैंसी फूड फॉर देम। सो हाउ टू कोप अप विद दैट? सो ऑनेस्टली ये जो बात कर रहे हो तुम कि टाइम नहीं है, आई डोंट बिलीव दैट। इट्स ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, इट्स ऑल अबाउट प्लानिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग योर मील्स, योर प्लान्स, Right. मील प्लान्स एंड लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स। तो आजकल तो लोगों आप के फैंसी पास डाइट्स में बिलीव करते हो? नहीं करती हूँ, नहीं करते आई हो। डोंट बिलीव इन दैट। मैं तो अरे। बिल्कुल देसी हूँ, मैं लोकल फूड, देसी घर का खाना जी। मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। Correct. और मैं बोल रही थी लोगों के पास व्हाट्सएप में और इंस्टा में रील्स देखने के लिए बहुत टाइम है। अगर हम देखोगे तो रील्स सब स्क्रॉल करते रहते हैं बहुत Correct, सारे। correct. हमें तो आप लगता है कह रहे हो लेकिन दिस इज जस्ट अ बहाना व्हिच पीपल गिव। एग्जैक्टली, बहाना ऑफ नॉट कुकिंग, बहाना ऑफ नॉट वर्किंग आउट, बहाना ऑफ Right. नॉट ईटिंग ऑन टाइम, और बहुत सारे लोगों के पास बहाना है। Right. और मैंने खुद, मतलब ऐसे जब लोग मेरे पास आते हैं तो ये सब बहाने के साथ ही आते Right. हैं। और ऐसे ही लोग जब फैट लॉस हो जाते हैं, जैसा मैं नवप्रीत के बारे में बोल रही जी। थी, we have one more girl Janvi, she also was somewhere around 90 kgs. Correct. उसने भी 18 kg lose किया। Okay. Then we also had one badminton player Neelima, she lost 15 kgs. One girl from Kolkata 14 kgs. तो ऐसे मतलब ट्रांसफॉर्मेशन तो बहुत जी। है। सो इन लोग के पास भी स्टार्टिंग में बहुत सारे बहाना थे। Correct. बट जब वो उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उनको जब बहुत, और ऐसे जब लड़कियां जब फैट लॉस करती है ना अंजलि, तो उनमें एक अलग कॉन्फिडेंस होता है Correct. फैट लॉस करने के बाद। राइट। पहले बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, नहीं होगा, ये होगा, अरे टाइम नहीं है, अरे वो, यही लड़कियां प्रॉपर जो मैं बताती हूँ वो अच्छे से बना के खा रहे हैं। सो इट्स ऑल Correct. अबाउट मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, प्रायोरिटाइजिंग थिंग्स, अडेप्टेबिलिटी,
डेलीगेटिंग थिंग्स. आप घर पे हो तो आप थोड़ा डेलीगेट कर दो. हस्बैंड्स लोग बिल्कुल को क्यों आप घर पे, काफी हस्बैंड्स लोग कुक नहीं करते. सो आई फील दे शुड आल्सो गेट इन्वॉल्वड इन द किचन. राइट. So I feel that. I think there is just one motivation which says कि भाई healthy रहना है, तो खाना तो अपने आप ही बन जाएगा. That's how it Because is. I cook my own food. Like I love cooking, I love eating. Right. So I feel कि खुद से खाना बनाओ यार. अगर बाई है भी तो थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाओ और थोड़ा सा प्लान कर लो कि हाँ एक दिन पहले कि हाँ ऐसे कर लो वैसे कर लो. Correct. Makes खुद के लिए तो कर ही सकते हैं. Exactly. है ना, खुद के लिए तो टाइम निकाल ही सकते हैं. That's right. So now आजकल Google बहुत चलता है. People usually Google it. Right. कि हम ऐसी कौन सी डाइट फॉलो करें जिससे मेरा वेट कम हो जाएगा या वेट ज़्यादा हो जाएगा. तो आपको क्या लगता है ये वेट कम ज़्यादा कैसे लोग गूगल से कर लेते हैं और उसके लिए वो कहते हैं हमें न्यूट्रिशनिस्ट की ज़रूरत नहीं है, या फिर शायद कोई एक एक्सरसाइज होगी जो वो गूगल से या यूट्यूब से आजकल देख लेते हैं लोग और कहते हैं हमें तो ट्रेनर को पैसे देने की जरूरत ही नहीं है. मुझे लोग बताते हैं शैलजा ये वर्कआउट मैंने इंस्टाग्राम में देखा तो क्या इससे टमी कम होगा. तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं होगा. तो आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक दैट व्हाटएवर इज गोइंग अराउंड इन द गूगल और इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब दैट इज राइट, और बिकॉज एनी विच वेज कहीं ना कहीं यूट्यूब पे भी आप देखोगे बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उनके चैनल्स हैं, और बहुत सारे ऐसे फिटनेस फ्रीक लोग हैं जिनके चैनल्स हैं, दे हैव अचीव्ड इन देयर लाइफ. सो व्हाट डू यू थिंक इट डेफिनेटली रिलेट्स टू द पीपल हु आर सीइंग इट, और वो उससे पतले हो सकते हैं या फिर उससे बेटर डाइट कर सकते हैं, कैसा है मतलब हाउ डू यू फील अबाउट दिस? सो अंजलि व्हाट आई फील इज दैट सही बोला तुमने कि आजकल फ्री का ज्ञान बहुत ज़्यादा है. इट कुड बी गूगल एंड व्हाट्सएप और यूट्यूब, फ्री का ज्ञान बहुत ज़्यादा है. बट मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि अच्छा नहीं है, क्योंकि उससे हम काफ़ी नॉलेज ले सकते हैं. बट ये सब टेम्पररी नॉलेज है. मतलब आप एक दिन उसको देख रहे हो और फिर आप थोड़ी हर दिन उसको अडेप्ट करो, आप नहीं करते हो. जैसे कि मेरी मम्मी अचानक से बोलेगी कि बेटा ये व्हाट्सएप पे ऐसे कुछ आया, ये लड्डू बहुत अच्छा होता है. पहली बात तो लड्डू अच्छा ही नहीं होता है कोई भी चीज़ का. करेक्ट. सो आई डोंट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि थोड़े टाइम के लिए आप देखिए इंस्पायर ज़रूर हो सकते हो. आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, आपका जनरल नॉलेज थोड़ा सुपीरियर होगा, थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा. बट न्यूट्रिशनिस्ट क्या होते हैं, हम प्रोफेशनल्स होते हैं जिनको एक एक्सपीरियंस होता है इतने इतने टाइम तक. एक साइंटिफिक एविडेंस उनके पास होता है बिकॉज उन्होंने इतने सारे क्लाइंट्स के साथ काम किया होता है. तो और ऑब्वियसली आपको कुछ टाइम तक वो साथ देते हैं. ऐसे नहीं कि आपने गूगल किया या ये किया, आप उतने टाइम तक इंस्पायर हो गए, उसके बाद फिर आपको लगता है अरे मैं स्ट्रेस में हूँ तो चलो फ्रेंच फ्राइज खा लो, तो ये कर लो वो कर लो. तो आई फील जो भी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन मिल रहा है आप उससे इंफॉर्मेशन लो एंड अपने जनरल नॉलेज को इम्प्रूव करो. बट एट द सेम टाइम एक न्यूट्रिशनिस्ट में भी इन्वेस्ट करो, बिकॉज उनका जो एविडेंस होता है, उनके जो मील प्लान्स होते हैं, मील प्रिपरेशंस में जो आपको हेल्प करते हैं, उनका जो नॉलेज अबाउट न्यूट्रिशन होता है वो इन डेप्थ होता है. तो ऐसे लोग आपको काफ़ी लॉन्ग टर्म हेल्प कर सकते हैं. राइट. तो आप दोनों का मिक्सचर ले सकते हो. ये नहीं बोल रही हो कि मत देखो, आप ज्ञान लो, आप हैप्पी रहो, बट अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको कोई प्रोफेशनल का एडवाइस जरूर लेना होगा. सो आई दैट इज वन मेजर रीजन कि आप लोग सर्टिफिकेशन लेते हो इन चीजों के लिए, एंड यू आर द राइट पीपल टू गिव नॉलेज. एग्जैक्टली. सो ऑनेस्टली अंजलि व्हाट आई फील इज दैट सर्टिफिकेशन जो भी लेता है कभी कभी मुझे लगता है वो एक तरफ होता है. जो एक्सपीरियंस विद क्लाइंट्स मेरा 9 साल से है, मुझे लगता है सर्टिफिकेशन तो मैं ऑनेस्टली भूल भी गई मैंने क्या पढ़ी. एक टैग है कि यस आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट, बट आई फील द एक्सपीरियंस विद ऑल द क्लाइंट्स व्हिच आई हैव हैड वाज ट्रेमेंडस. मतलब स्पेशली द कॉम्बिनेशन ऑफ फूड. लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि क्या खाना चाहिए. जैसे मैं बोलूँगी अनार हेल्दी है तो लोग पोहा, मतलब आई ट्रैक ऑल देयर मील्स, आई वांट या मतलब जो भी फ्रेशर होता है मैं उनको बोलती हूँ इतने टाइम तक मुझे स्नैप्स भेजो. सो पोहा के ऊपर फरार एंड इतना सारा भर भर के अनार दाना. सो आपने तो बोला था अनार बहुत हेल्दी है. या फिर फ्रूट्स अगर मैं बोलूंगी तो पूरा फ्रूट का प्लैटर होगा, बनानाज, अनार, उसको मॉडिफिकेशन मॉडिफाई कर देते हैं. दैट्स नॉट गुड एक्चुअली. कॉम्बिनेशन डजंट वर्क, इट विल नेवर वर्क. करेक्ट. फ्रूट शुड बी टेकन लाइक एक ही साथ. फॉर एग्जांपल एप्पल है तो सिर्फ एप्पल खाओ, उसके बाद कुछ और खा सकते हो. ऐसे कंबाइन नहीं होगा. इवन स्मूदीज, आप स्मूदी में बनाना, मिल्क, शक्कर नहीं, मैं आजकल जैगरी डाल रही हूँ, तो जैगरी एंड शुगर भाई बहन है, कुछ भी अच्छा नहीं है. इट्स ऑल एडल्टरेटेड. राइट. सो शुगर फ्री केक्स का आजकल फैशन है. Why to go for sugar free cakes? Go for sugar वाला केक ना. Correct. Right. So you believe in cheat days then? Sugar से याद आया मुझे. Yes, definitely. You should have your cheat days. Alright. Because cheat days नहीं होगा तो फिर craving और ज़्यादा बढ़ेगी. तो cheat days ज़रूर आना चाहिए. I do cheat on my weekends. I also do cheat. Yeah. So that's great. Superb hearing this from you, Shailaja. But
I would actually want to understand. देखो आज तो you're telling me that you have actually trained 500 plus women in these 9+ years of your journey. So how did it started for you? देखो मैं I always feel कि किसी एक बिजनेस को रन करने के लिए तुरंत से आपको 500 या तुरंत से आपको 1000 क्लाइंट्स नहीं मिलते हैं. Right. तो जब आपने ये जर्नी शुरू की थी तो आपने क्या सोचा था? What did you think about it? Have you ever thought in your life in the past when you started Shailja's Fitness Club that okay, 5 years down the line you will be here, 10 years down the line you will be there? So how did it started? Because it's not easy and it is actually not feasible for people to have such kind of exposure. आपको 500 प्लस लेडीज़ को मिला, आपको मौका मिला उन्हें सिखाने का, बताने का. दैट्स अ बिग थिंग. यहाँ पे बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट हैं, बहुत सारे fitness really होंगे. But somewhere, you know, they don't land up getting into a business. शायद वो start करते हैं और वो journey में भी खत्म भी हो सकती है. Because business is not something which is anybody's cup of tea. So how have you managed that? And how did you start all of this? So I was always into fitness, Anjali, as I told you. जब मैं बड़ी हो रही थी, I joined gym. Actually, I was very thin, so I joined gym to gain muscle mass. सब लोग मुझे बोलते रहे she's so thin. तो मैंने उस TC gym join की थी way back when I was in college. So that helped me. I was also into modeling college days में. I had won couple of crowds वो local level पे. Right. So I was also into modeling. तो मुझे बहुत help किया अच्छे दिखने के लिए. So वहाँ से वो कीड़ा तो हमेशा से था. मतलब if I'm in पुणे, मैं शादी की वक्त पुणे में थी. So when I was in पुणे तो वहाँ पर भी जो मैं PG में रहती थी, मैं सारी लड़कियों को बॉटल ट्रेनिंग देती थी. तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में था कि यार मैं ये बॉटल सब लोग परेशान हो जाते हैं. फ्री टाइम मतलब ओके शैलजा के साथ फिटनेस करता है. सो यू सो बॉटल ट्रेनिंग मतलब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. वो टाइप में I don't know this, but good you told me. Yes. I was talking about strength training. मतलब strength में you need dumbbells. Right. तभी मेरे दिमाग में dumbbells तो नहीं था obviously. वैसी फैसिलिटी नहीं थी कि आपके रूम में डबल दे. Right. So मैं सबको बॉटल्स लेके ट्रेनिंग देती रहती थी. पता नहीं क्यों, कैसे कैसे कुछ सुना होगा. Right. So ऐसे करते करते मैं खुद फिर फिटनेस में आई. तो मेरी फ्रेंड रश्मि, she was मगरपट्टा. Okay, she is also a baker. So she had told me कि तू ही फिट होते रहती क्या, प्लीज हमको भी थोड़ा ज्ञान दे, हमको भी थोड़ा फिट कर. Right. So I was like, हाँ ठीक है फिर चलो चालू करते. So वो रश्मि and my four girl. So she told कि चलो शैलजा अभी हमको ट्रेनिंग करेगी. So I started with 2 girls. I trained them and 2 से 4 हुए. कुछ फैट लॉस के भी आए थे. So अचानक से I think 3rd या 4th लड़की का दोनों लड़कियों का 8 to 10 kgs लॉस हुआ over the period of time. So मुझे लगा अच्छा मुझे भी ये चीज़ है कि मैं लोगों में एक्चुअली मैं बहुत कनेक्ट बता देती हूँ लोगों के साथ. नॉट ओनली अ ट्रेनिंग. मेरी आपने मेरे साथ भी बहुत अच्छा कनेक्ट. And yeah, I just feel very connected to you. Yeah. और जैसे जैसे आप बता रहे हो about your journey, I'm sure you have proved yourself at your Shailja Fitness Club. That is one major reason that you have got these add-on people in your life. किसी वक्त तक आप प्रूफ नहीं करोगे, आपका काम आगे बढ़ रहा है. Exactly. That's what I feel. Very true, very true. You have to give quality, and of course you have to prove yourself every time whenever you're in business or you're having to, if you are of sets and so on. Yeah. And I am myself a very disciplined kind of a person actually. Like be by nutrition और मेरे workouts. Right. या कोई भी चीज़ अगर मुझे दोगे, कोई भी छोटी सी भी चीज़ दोगे तो मैं उस पर पूरा घुस जाती. Right. So I don't know. I just started with 2 girls as I told you, and now I'm training 80 to 100 girls per month. So yeah, I know this very well because whenever I call you up, I know always that's what you are very much into your batches, and you don't speak to me saying that in a batch win. So I love that, and somewhere it just inspires me. Was this lady so busy? You have made it. I'm glad you have done this, and I'm glad that we are talking here about your life. Thank you. So I also wanted to understand How do you manage all this now? You are a mother, you are a wife, you are doing all this as well. I mean, fitness, nutrition, इतनी सारी ladies handle करना. How do you manage all this with a good plan in 24 hours? How do you do this? Okay, so it's not easy, obviously, बिल्कुल easy है, but कुछ planning strategy लगती है इसे सब चीज़ों को करने के लिए. तो आई फील कि एक ऑर्गेनाइजेशन ज़रूरी है. एक दिन पहले थोड़े भी क्लास सब क्या बता रहे हो, और मेरे बैचेस कैसे बताए जैसे मैंने बताई, और जैसे मैं बैचेस का टाइम इधर उधर नहीं कर सकती हूँ बिकॉज आई हैव फिक्स्ड टाइमिंग्स फॉर माई बैचेस. तो बैचेस के आगे और पीछे जो भी टाइमिंग्स होते हैं उसमें मैं फिर वो कोऑर्डिनेट करके उसको एडजस्ट करके, फॉर एग्जाम्पल ओके तो मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि मुझे एक बैच के बाद और दूसरे बैच के बीच में कुकिंग करना है
क्या कुकिंग करना है थोड़ा सा पहले से मैं सोच लेती हूँ। और मेरे बहुत फिक्स सारे कुकिंग होते हैं, मैं थोड़ा हेल्दी खाती हूँ मोस्टली वीक डेज में, तो मैं फिर वैसे कुक कर लेती हूँ। उसके बाद थोड़ा डेडिकेशन बहुत ज़रूरी, जैसे मैंने वो भी बताया, सिर्फ खुद पे मतलब थोड़ा सा डेडिकेट हल्का फुल्का करते रहो। एंड मी टाइम भी बहुत ज़रूरी है, तो इन मी टाइम में भी आप थोड़ा सा अपने पे फोकस करते हुए आगे बढ़ो। तो ये फोकस आपके हस्बैंड और आपका बेटा वो भी फॉलो करते हैं या हम सो अब जैसे मैंने बोला कि मैं काफ़ी डिसिप्लिन रहती हूँ अपने सारी चीज़ों में, तो मैं एक एग्जाम्पल सेट तो करना चाहती हूँ, बट एट द सेम टाइम आई डोंट वांट टू फोर्स देम कि हाँ मैं जो कर रही हूँ वो तुम लोग करो। एंड आई ऑल्सो वांट टू अंडरस्टैंड कि उनकी क्या चॉइसेस है, उनकी क्या प्रेफरेंसेस है फिटनेस को लेके, हेल्थ को लेके। बट आई एम वेरी श्योर कि जब आप एक साथ रहते हो एक घर में, तो कहीं ना कहीं आप इंस्पायर हो जाते हो, या आप अडेप्ट हो जाते हो, या कहीं ना कहीं आप वो सीख लेते हो। So with my family, मुझे लगता है कि हबी goes to gym and ठीक ठाक फिट तो है ही वो नहीं है तो करना ही पड़ेगा of course। and I just say कि कोई भी आपका सच में आता भी होगा पहले, तो वो ये बोलता हो कि आपने घर में इंस्पायर किया है कि आप हमारे को कर बिल्कुल, because that is what is important। हमें कर Exactly। तो फिर आई एम श्योर कि आपने फिर घर पे भी किया होगा। Yeah, I wanted to ask you, I believe in it completely। I believe in it completely। तो ये सब चीज़ें होती है, टाइम मैनेजमेंट, प्रायोरिटाइजिंग थिंग्स, ऑर्गेनाइजेशन, थोड़ा पहले से कुछ प्लान कर लो रहा है। एंड समटाइम्स सेइंग नो ऑल्सो, बिकॉज क्या होता है ये सारे क्लाइंट्स होते हैं, तो मैं बहुत बार साइलेंट पे डाल देती हूँ फूड को, तो कहीं कहीं एक ड्रॉ करना होता है लाइफ कुछ चीज़ों को, ऑल्सो कुछ इवेंट्स को मना करना। सो आई हैव टू बैलेंस इन लाइफ, एक बैलेंस स्ट्राइक करती हूँ मैं घर और प्रोफेशन। बट अगर मैं घर पे हूँ तो फिर मैं कम्प्लीटली इन्वॉल्व रहती हूँ डिफरेंट चीज़ों में। आई बिलीव कि साथ में कहीं आउटिंग्स चली जाओ एंड कुछ ना कुछ हॉबी एक टेकअप करो सब मिल के, फिर मैं उसमें इन्वॉल्व हो जाती हूँ। देन आई फॉरगेट माय प्रोफेशन एंड एवरीथिंग। व्हेन आई एम ट्रेनिंग एंड आई एम अ प्रॉपर ट्रेनर देन what good suggestion या फिर health tip you want to give to our audience? Okay, so I would say definitely set a routine। A routine is very important, बहुत ज़्यादा important। अगर रूटीन नहीं है तो फिर सब कुछ ही होता है। So thank you so much, Shaina, for being such an amazing guest for us. It was wonderful hearing you. You have a very inspiring journey which you have shared, and I'm sure a lot of people would have got inspired and be able to start something of their own, like how you have started. It's definitely I'm lucky to have you here. Thank you, Anjali. Thank you for remembering me and thank you for inviting me। It's like that. Thank you।